Hello and welcome to the Print Political Adda. I am Saurav Roy Burman. With me is my colleague Shankar Animesh, who really tracks national politics. With his essentially his focus is the National Democratic Alliance, and joining us from Mumbai is Professor Ashwini Kumar of the Tata Institute of Social Sciences. Professor Kumar is really an authority on Indian politics, and he also specializes particularly on Bihar politics. And so we'll essentially be discussing the political state of play in Bihar, where assembly elections are due later this year. So naturally, the battle is heating up by the day. And over the last few days, we have seen how the RJD and the JDU trade charges over who's actually promoting nepotism in politics. And nepotism is one charge that has really troubled the RJD over the years, and now this time it is attempting to, in a way, to turn the table on the GPU. So, Professor Kumar, I think this is where we can begin. I would like to ask you, how do you think this is going to play out over the next few days and months? This Uh, whole debate on nepotism. Now, I think nepotism is a much more milder term. I guess of late I'm working on clientelism and programmatic versions of politics in South Asia, and also looking at other democracy in various parts of the world. So I'm not surprised by recurrent use of nepotism. I would be more surprised by the use of dynastic politics in Bihar. This is something, this cuts across caste, communities, class, and also regions in Bihar. So nepotism, I don't think, if you look at, trends of Bihar politics, especially, Mandal 1, Mandal 2, and what I'm going to call to in 2025, inauguration of Mandal 3 in Bihar, especially in the context of caste survey that has been released 2023 in 2023. So nepotism is not going to matter much in deciding the extent of electoral outcomes in 2025. Neither did it matter in 2020 elections, if you remember COVID's elections. Hmm. So nepotism, I think the family politics, if you just look at, major leaders in Bihar, what they call prominent dynastic politicians, Tejaswi, Tej Pratap, Misa Bharati, Chirag Paswan himself, who is becoming, really popular in terms of Bihar first, Shreyasi, Nitin Nabin, Lav Sinha, Suhasini Yadav, Santosh Suman. I can go on telling you about every political party in Bihar, Chetan Anand, Vikas, VIP also, and others, including Sambhavi Chaudhary. I was in Bihar recently and in Samastipur, and I can tell you the popularity of Sambhavi Chaudhary. That reminding me of, global trends in terms of iconic youth politics. So this nepotism is not going to matter much in Bihar politics. So, That's my, like, you know, response to this question. right, right. So, like you said, it's not going to really matter in Bihar politics. So, I want to ask at a more fundamental level, did it ever matter in Indian politics? Did dynastic politics or nepotism ever influence the way people voted? I think, look, coming, this is like a political scientist, favorite domain. I recall work of my colleague Kanchan Chandra at Harvard University, and the dynastic politics. So if you go through that fundamental work, seminal work done on dynastic politics in India, perhaps across India, it didn't matter. It turns out to be anomaly in terms of democratic political theory, that in other parts of the world, and Hmm. especially in American politics, dynasts are rare. Dynasts are rare. But if you look at South Asian context, and especially India and across regions, DMK, AIDMK, North South, there is no delimitation divide here, on the lighter note. When it comes to family politics, when it comes to dynasty, I mean, there is one way dynasty matters in India, and that is where PM Narendra Modi made it a major, slogan, major political campaign against the reigning dynasty, who also happens to be, in a more conventional sense, ruling order or ruling establishment. So if you look at the character, what we call in political science neo-populism across the world, I think in that sense, at the national level, at the macro level, it does, matter. It does matter. But to what extent it impacted 2014 elections, 2019 elections, or 2024 parliamentary elections, based on the data, we cannot
come to a definite conclusion that it influenced election outcomes in a major way. But it does matter in a rhetorical, strategic sense at the national level, but not in the state level politics, not at the local level politics. The more you go down the ladder of politics in India, and especially in Bihar, you come to panchayat, And because of the rotational system, you will find that it doesn't matter at all in the Panchayati Raj elections. Chacha is fighting elections, granddaughters are fighting elections, grandsons are fighting elections, even in the panchayat. So, but in the national system, if you look at what we call fourth party system, in terms of evolution of that party system, it did matter, but not to a great extent, but in a rhetorical device, in a political device, it will continue to matter. Shaping the narrative and the perception. Yes, indeed. प्रोफेसर कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि 2020 का जो असेंबली इलेक्शन था उससे कितना डिफरेंट 2025 का हुआ, क्योंकि उस समय भी हम बातें सुनते थे मीडिया नैरेटिव में और तमाम लोग कहते थे कि भाई नीतीश कुमार तो खत्म हो गए, लोकसभा चुनाव में भी ये नैरेटिव चला गई, अब तो नीतीश कुमार खत्म हो गए जी, नीतीश कुमार का सबसे पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो गया, नीतीश कुमार तो इस चुनाव में कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार ने परफॉर्म किया। तो बिहार, जिसको कि आपने कहा कि और अरविंद दास ने कहा कि इससे रिपब्लिक ऑफ बिहार, तो वहां पे तो कास्ट आइडेंटिटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि नीतीश कुमार को लोग कितनी बार खत्म कर चुके, लेकिन नीतीश कुमार बने हुए हैं। कि पहले तो नीतीश जी को मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में, भारतीय राजनीति में और क्या विश्व की राजनीति में, जिसको कहते हैं ना हम लोग सर्वाइवल स्किल, आप जितनी बार नीतीश कुमार जी की कहेंगे कि हम आज ये खत्म हो रहे हैं, उतनी ही शायद उनकी आयु बढ़ती जाती है, पॉलिटिकल एज। सो आई एम लुकिंग एट दैट मेटाफर, व्हाट इज कॉल्ड पॉलिटिकल लॉन्जेविटी। So in fact, I mentioned in 2020 elections in various shows and also in my works that perhaps, there is one thing is clear, Nitish Kumar will remain, वो रहेंगे, बिहार की राजनीति में ये रहेंगे और इस चुनाव में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। और लेकिन एक जो सोशलिस्ट जनरेशन था बिहार में, वो जो लालू जी, नीतीश जी और रामविलास जी की जो जनरेशन थी, पीढ़ी थी, सुशील कुमार मोदी जी की जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी धीरे धीरे बिहार में अब खत्म हो रही है, उन पे सूर्यास्त हो रहा है। We cannot deny that. But on the other hand, if you look at the rise of new leaders, what I call millennial leaders, that's also happening in Bihar. You cannot deny Tejasvi, you cannot deny Chirag Paswan, you cannot deny Sambhavi Chaudhary, Chetan Anand, Nitin Naveen, you cannot deny them. The place under the sun, उनको आप अब नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे कहते हैं, मुझे लगता है कि जिसको जनरेशनल चेंज कह रहे हैं, वो जनरेशनल चेंज हो रहा है। लेकिन अभी भी, जैसे हम कहते हैं ना, एजिंग पॉलिटिशियंस, अभी भी उनके पास जो पॉलिटिकल अपील है, मास अपील है, द वे दे स्ट्रक्चर कास्ट combination and can work across different coalitional arrangements in terms of the caste alliances, ये अभी भी नीतीश जी, लालू जी, इनकी भूमिका बनी रहेगी बिहार की राजनीति में। तो और इसलिए 2025 के इलेक्शंस में नीतीश जी, आप देख लीजिए, अभी भी मूल रूप से अनडिस्प्यूटेड एनडीए के तरफ से सीएम कैंडिडेट है। तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी बने रहेंगे। जी, थोड़ा सा अगर स्पेकुलेशन हम लोग कर लें, क्योंकि ये सबसे पसंदीदा काम पॉलिटिकल जर्नलिज्म का है, तो आपके हिसाब से क्या होगा कॉन्टूर चुनाव का? उसमें नीतीश कुमार एनडीए अलायंस लीडिंग पार्टनर होंगे, या नीतीश कुमार जितनी संख्या पे हैं 43 पे, उससे भी कम पे आ जाएंगे, बीजेपी का नंबर ज्यादा होगा? क्योंकि बीजेपी का जो एक एम्बिशन है, जो इतने सालों में सारे स्टेट में बीजेपी ने अपना सीएम बना लिया, महाराष्ट्र तक में उन्होंने तोड़ के अलायंसेस करके अपना सीएम बिठा दिया। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे तमाम एफर्ट के बाद भी बीजेपी अपना सीएम नहीं बिठा पा रही, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हिंड्रेंस नीतीश कुमार है। तो बीजेपी ये चाहेगी कि, क्योंकि अमित शाह से बार बार ये पूछा जाता है, तो अमित शाह कहते हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के लीडरशिप में होगा, लेकिन ये नहीं कहते कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार सीएम होंगे, तो उस पर कहते हैं कि वो उस समय डिसाइड किया जाएगा। तो आपको लगता है कि पीछे से कुछ कहानी और बीजेपी प्ले करेगी? देखिए, मैं इसको थोड़े दूसरे ढंग से रखता हूँ।
जहाँ तक मुझे बिहार का अनुभव है और बिहार पर लिखने का भी जो अनुभव है, बरसों से आने जाने का, और बिहार में मैंने अभी लंबी यात्रा भी की है। देखिए, नीतीश कुमार हिंड्रेंस नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए के एसेट्स हैं और बीजेपी के एसेट्स हैं। और ये कोई पीछे से वो चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ रही है। ये फर्क है। जो 2020 का इलेक्शंस है और 2025 का जो इलेक्शंस है, उसको पहले आप देख लें कि 2020 का इलेक्शंस कोविड के समय हो रहा था। नीतीश कुमार जिस तरह से, कई लोग उन्हें दल बदलू कहते हैं, कई लोग कहते हैं आया राम गया राम। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कांस्टेंट है, एक धुरी है, सेंट्रल फैक्टर है। और जहां तक अगर आप अभी देखेंगे, स्ट्राइक रेट देखेंगे, तो नीतीश जी का स्ट्राइक रेट और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2010 में सबसे बेहतर रहा था। बीजेपी 91 सीट और नीतीश जी 100+ थे। तो मुझे लगता है कि दो संभावनाएं दिख रही है। एक, नीतीश कुमार किसी तरह से हिंड्रेंस नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार एसेट है। और नीतीश कुमार के पास जो सबसे बड़ा एसेट है, वो बिहार का साइलेंट मेजॉरिटी जो विमेन है, जो अक्रॉस कास्ट और अक्रॉस कम्युनिटीज है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार के आप किसी गांव में चले जाएं, और अगर वहां जाने के बाद आप देखेंगे कि महिलाएं कास्ट में रहने के बावजूद भी, कास्ट सर्वे होने के बावजूद जी, आई वाज माई सेल्फ डूइंग सम स्मॉल माइक्रो स्टडी इन बिहार। मैंने ये देखा कि जब महिलाओं से हम जाति का सवाल पूछते हैं, तो उसमें एक फिल्टर आ जाता है, उसमें साइकिल योजना आ जाती है, उसमें उज्ज्वला योजना आ जाती है। तो जिसे हम कहते हैं सेकुलर गुडीज, तो नीतीश उसके विधान में, और उसके विधान नीतीश ने किया, ये दूसरे राज्यों से अलग है। हरियाणा से में जो आपको अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आया, महाराष्ट्र जहां मैं लोकेटेड हूं अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आया, ऐसी संभावना बिहार में तभी बन सकती है जब नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में एक ऐसा कंसोलिडेशन हो सीट एलोकेशन में, जिसकी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि सीट एलोकेशन बिहार में बहुत कुछ डिसाइड करेगा फाइनल इलेक्टोरल आउटकम। कितनी सीटें नीतीश लड़ेंगे और कितनी सीटें बीजेपी लड़ेंगे, इस पर बहुत तय होगा। और इसको अब 2020 के आंकड़े से ना चले कि आपने 43 जीता, हम 74 पे हैं। मुझे जो संभावना दिखाई दे रही है, 2020 से 2025 इन 5 सालों में बिहार बदल गया है। मैं कोट कर रहा हूं, एक अरविंद दास का ही फ्रेज था, बिहार बदलता रहता है, लेकिन ऊपर से ना देखिए, नीचे से बिहार को देखिए। लुक एट द बॉटम ऑफ बिहार, इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। और इन 5 सालों में जिस तरह से नीतीश कुमार बदला है, थोड़ा इसको भी आप, क्योंकि जो वहां पे नैरेटिव है कि, या लोग कहते हैं जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव, कि नीतीश कुमार ने अपने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कुछ काम किया, उसके बाद से नीतीश कुमार उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन बिहार में नहीं ला सके जो उनसे उम्मीद की जाती थी। कि आप देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में न के बराबर है, अगर दूसरे राज्यों से उसकी तुलना करें। तो किस सेंस में नीचे से बदला है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, नीचे से बदला है वो है पंचायत से बदला है, गांव से बदला है। यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप नीना गिप्ता का जो पॉपुलर पंचायत अगर आप देखते हैं, बिहार के सारे पंचायत को विजिट कर लें, आपको बिहार में जो पंचायती राज क्रांति आई है, महिलाओं की जो भूमिका बनी है, ICDS का जो है, घर घर में पानी पहुंचा है। देखिए, दिल्ली में रहने और बंबई के ड्राइंग रूम्स में जो पत्रकार है, हमारे भी मित्र हैं, स्कॉलर्स हमारे भी मित्र हैं, वो अक्सर हम ऊपर से देखते हैं। सड़कें बनी हैं और आज भी बन रही हैं, ग्रीनफील्ड्स आ रहा है और ना भी आएगा, चाणक्य लॉ कॉलेज भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी पहुँचा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। मैं उससे अलग हटके कह रहा हूँ, जहाँ की नीतीश और जहाँ बीजेपी की बड़ी संभावना है कि ये जो परिवर्तन हुए हैं, इन दोनों परिवर्तन में अगर आप देखिए साइलेंट मेजॉरिटी विमेन है, उसको सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने में बीजेपी और नीतीश कुमार का काफ़ी योगदान रहा है। ये चीज़ें बदल रही है। और ये जैसे गैस की योजना है, इस तरह के जितने भी, जिसको कहते हैं ना वेलफेयर, और वो वेलफेयर प्रोग्रामेटिक वेलफेयर है, वो पेट्रोनिस्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है कि गांव में रहने वाले एक खास जाति है कि आप धानुक हैं तो आपको नहीं मिला, और आप ये EBC में तो आपको नहीं मिल रहा है। सभी जातियों को गांव के स्तर पर इन सारी सुविधाएं और वेलफेयर और सेकुलर गुडीज मिल रही है। ये नीतीश कुमार का बहुत बड़ा काम है, जो आंखों से कम दिखता है।
इसे वहां जाकर जब आप महसूस करेंगे तो ये फर्स्ट फेज देखिए, नीतीश का जो फर्स्ट फेज है 2005 से 10 मैंने लिखा, और उसमें अभयानंद और नीतीश कुमार की जोड़ी थी जिन्होंने 70,000 क्रिमिनल्स और किडनैपिंग इंडस्ट्री को समाप्त कर दिया। दैट हैज नॉट बीन रिवाइव्ड इन बिहार। अब बिहार में आज रात में लड़कियां स्कूटी चलाती हैं। मैं आपको समस्तीपुर, पुनास के गांव में, आप बखरी चले जाइए, आप नालंदा, नवादा चले जाइए। मैं एज ए रिसर्चर खुद डरता था जाने में कि 5 बज गया शाम, अब हम नहीं ट्रैवल करेंगे। ये नीतीश कुमार की बहुत बड़ी सफलता है। और जब भी बीजेपी और नीतीश कुमार साथ रहते हैं तो बिहार में ये जो एक लॉ एंड ऑर्डर है, और जैसे कहते हैं ना जंगल राज, ये एक मेटाफर है, सही में जंगल राज नहीं था बिहार में, मतलब ये एनालिस्ट लोगों ने इसको क्वाइन कर दिया, बट वी कैन रिकंस्ट्रक्ट इट। तो ये जो नीतीश का काम है और नीतीश की जो संभावनाएं हैं वो चल रही है बिहार में। और जो मुझे लगता है कि नीतीश के आने वाली पीढ़ी, और मूल रूप से जैसा आपने भी कहा और जो दिख भी रहा है कि बिहार में निरंतर बीजेपी मजबूत होते जा रही है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए स्वर्णिम अवसर है। और आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि 2025 में आपको कुछ ऐसे रिजल्ट आए जिसके बारे में हमने नहीं सोच रखा है। सर, वो हरियाणा या महाराष्ट्र की तरफ वी विल बी नॉट फुली देयर, बट समहाउ ये रिपीट नहीं होगा। ये 2020 का जो क्लोज कॉन्टेस्ट था दैट वोंट बी रिपीटेड। आपने काफी हिंट्स दे दिया है ऑलरेडी, आई थिंक, रिजल्ट का। बट सिंस वी आर जस्ट डिस्कसिंग चेंजेस इन बिहार, changes that Bihar has witnessed over the last decade or more than a decade. One change you also spoke about during 2020 assembly polls, and you actually coined this term youth insurgency. जी जी, how these transformative changes will be witnessing some really transformative changes and tectonic changes in Bihar politics over the next few years. And how do you think that is going to be a factor this time? To what extent? The rise of the I think, yeah, and once again, that's continuing from what I predicted, and that happened also. One of the reasons 2020 elections became so tight and close because of the rise of these millennial leaders. And interestingly, or rather paradoxically, these millennial leaders and young leaders are coming from families or dynasties, of different kinds, across castes, across communities, and across political parties. So I think that will continue. That will continue in Bihar, and the importance this year, if you look at Laluji, finally intervened and expelled his own son out of the party. That also shows to us that aging patriarchs, aging politicians continue to remain in power in structuring the outcomes of politics. But on the front, these young millennial politicians are there, and they are actually talking about, if you notice, Bihar First, that slogan Chirag Paswan is becoming more and more popular. And I'm not sure that to what extent he will become this time a spoiler, disruptor, or empowering and enabling what his father did. If you recall, 2005, the February election, 19 seats. If Chirag Paswan gets, 19 seats, that clearly shows that my prediction of youth insurgency will happen in Bihar. So a lot depends on how city allocations happen, how sharing and coalitional arrangements happens, and how, people look at these arrangements, But one thing is clear from Bihar, from the ground up, that migration, unemployment, and youth development, including the debate about, lifting the cap, 50% cap on reservation. So let's look at, this complex web of, caste, class, women, and youth insurgency. I think much will depend on what I call, Bihar is going to be this time, hyper-local. And secondly, also, the elections will be decided by more micro-social engineerings, because we haven't discussed about, how Dhanuks, how Telis, how Malhas, how, these other EBC castes
Their percentage is about 2% and more. So if you look at how these castes are going to play out in Bihar politics in terms of what I call micro social engineering, from a distance, we may talk about development or what Nitish Ji did and what he hasn't done, but much will depend on the ground how these micro social engineerings are done in view of the caste survey. That's going to be decided and decisive rather than dynastic politics, rather than, development or jungle raj. That's going to be very decisive. So Mukesh Sahni is going to be very important. And I'm also looking at, Prashant Kishore. This time, Prashant is doing exactly what Chirag did 2020. So I'm not expecting much seats in terms of the real gains, but he's going to be there. He's also millennial. He's young. So if you look at, Chirag Paswan, Mukesh Sahni. He may not be technically millennial. Even with millennial, I'm broadening that. In fact, in Maharashtra, we call our chief minister millennial. In terms of his appeal across, he's young. I mean, like, he's not Aditya Thackeray, but our CM is also very popular across, classes, castes, communities, urban-rural divide. So that's something is happening in Bihar. You are saying, प्रोफेसर कुमार, की प्रशांत किशोर का वो हाल हुआ कि लोग जो भोज में आते हैं पूड़ी भात खा के जाते हैं, लेकिन वोट दूसरे को देते हैं। तो प्रशांत किशोर जो तमाम बातें कर रहे हैं कि बिहार को कास्ट आइडेंटिटी से निकलना पड़ेगा, आप लोग तभी ग्रो करेंगे जब वो कास्ट से निकलेंगे, लेकिन अंत में लोग, जैसे बिहार के बारे में कई बार कहता हूँ कि जो पूरे देश में कॉन्सेप्ट होता है ना, फ्लोटिंग वोटर, स्विंग वोटर, बिहार में ये सब कुछ नहीं होता। बिहार में 5 साल पहले भी लोगों को पता होता है कि किसको उससे वोट करना है, तो वहां पे स्विंग और फ्लोटिंग जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको लगता है प्रशांत किशोर वो उस बैरियर को तोड़ पाएंगे? नहीं, उसके पहले मैं आपकी बात को ही बढ़ा रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि प्रोटीन होता है, तो जब आप जिम जाते हैं तो प्रोटीन डाइट पे रहते हैं। बिहार का आज भी, मैं एग्री करता हूँ, बिहार का आज भी प्रोटीन डाइट कास्ट है, लेकिन हम उस कास्ट को उस नजरिए, कन्वेंशनल नजरिए से ना देखें। कास्ट भी बहुत बदला है और कास्ट अब वर्टिकल नहीं है बल्कि हॉरिजेंटल है बिहार में, और कास्ट एक रास्ता है एम्पावरमेंट में। तो बिहारी के पास जो प्रोटीन डाइट है, जिसको लेके बाहर मजदूरी करने जाते हैं, देखिए अभी आप देखिए बिहारियों की संख्या आंकड़े से देखें तो करीब करीब 1.5 करोड़ बिहारी, मेरा खुद में मैंने काम किया है, माइग्रेशन मोबिलिटी मेरी किताब आई है, उस पर जो मैंने काम किया है, सीजनल माइग्रेंट्स, टेम्पररी माइग्रेंट्स। तो वो जो प्रोटीन डाइट है वो जाति है, लेकिन वो जाति उस तरह से काम नहीं कर रही है जिस तरह से हम प्री मंडल स्टेज में देखा करते थे। आज बिहार में जाति और क्लास के बीच में और जेंडर के बीच में इंटरसेक्शनल रियलिटी है, उस हिसाब से ये एक प्रोटीन डाइट है। और जहाँ तक प्रशांत किशोर साहब का सवाल है, तो मैंने महसूस किया कि उनका नाम गांव-गांव तक चला गया है। ये आप मान के चलें कि हर गांव में लोग उनको जानते हैं, उनके पास एक समझ भी, उन्हें पदयात्रा भी की है, लेकिन वो पूड़ी और सब्जी वाला तो नहीं लगा। लेकिन मुझे लगता है कि दही चूड़ा जैसे नॉर्थ बिहार में पॉपुलर है, तो प्रशांत जी के साथ मतलब हो रहा है कि दही चूड़ा लोग खा रहे हैं और उसके साथ गुड़ उनको नहीं मिल रहा है। जब भी मैंने बातचीत की कि आपकी क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको, तो दही चूड़ा हमने खा लिया लेकिन उन्होंने गुड़ नहीं दिया। वो जो गुड़ है आपके हिसाब से बिहार का कास्ट एज ए प्रोटीन है, वो जो गुड़ है बिहार का, अगर आप उसका रस नहीं लेते हैं तो बिहार में आपकी संभावनाएं कम जाती है। तो जो प्रशांत किशोर जी की जो उनका एसेट है, जो एडवांटेज है, वही उनका डिसएडवांटेज हो रहा है, ये मुझे लग रहा है बिहार के चुनाव में। और चूंकि वो खुद अकेले लड़ेंगे और उनके साथ कोई अलायंस नहीं है, अगर वो छोटे दलों के साथ मिलकर अलायंस करते हैं, बीएसपी के साथ या और भी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर अलायंस करते हैं, जिसको हम माइक्रो पार्टीज कहते हैं, माइक्रो पॉलिटिकल पार्टीज, जिनके रीच छोटे छोटे होते हैं, तो शायद संभावना बनती है कि वो एक तीसरे फॉर्मेशन के रूप में इमर्ज कर सकते हैं। मच डिपेंड्स ऑन हिज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड इज ए वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट, बट ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। हिज स्ट्रैटेजी इज नॉट ब्रिंगिंग हिम पॉलिटिकल कैपिटल एनफ टू मेक एनी डेंट into the establishment in Bihar. And बिहार के establishment आप मान कर चलिए, आज भी नीतीश जी, लालू जी, नीतीश कुमार और बीजेपी, ये establishment है बिहार का। और बिहार की जो fault lines है, ये fault line ना मानिए। बिहार में आप
नीतीश जी पे आरजेडी में रहे या नीतीश जी कांग्रेस में भी चले जाएंगे तो वहीं रहेंगे. तो these fault lines do not operate in a linear way or perhaps in a vertical way in Bihar. That's the assessment I'm making for Bihar 2025. To what extent would you agree with the observation that one of my colleagues actually made? That caste and mandal remains an essential component in Bihar politics, but it is no longer the clarion call of Bihar politics. Yeah. So I think, as I said, if you look at qualitative change in Mandal, from Mandal 1 to Mandal 3, I mean, like, just look at, the language in Bihar on the ground, like 65% reservation in private sector, etc., etc. In fact, Bihar is also experienced, especially if you look at students, in Kota, elsewhere, and also civil services. Bihar supplies a large force there. They are very excited about 10% EWC reservation. They are also excited about lifting the cap on 50%. So that way, Mandal continues to influence and structure, but not in the same way, not in the same fault line. That silent revolution has already happened in Bihar. That cannot be reversed. So across communities, if you look at caste survey, only 15.5% upper caste or forward caste. So imagine a society, and largely, rural society, 90% society based on agriculture and migration. So this will continue to influence Bihar, but in a very different, qualitatively speaking, in a different way. And that is why youth, that is why, the issue of unemployment, and that is why the issue of migration are hotting up Bihar politics, not just caste. That's very clear. If you go to any political parties, is making any appeal, and they are making sure that they filter through. So caste alone perhaps is not going to matter much, and religion not going to matter much. Elsewhere it may matter. On the other hand, much will depend on how the dominant political parties in Bihar negotiate with a new constituency, which is not caste neutral constituency, that EBC. So these extremely backward castes are going to be important, and in this EBC there are some 8-9 castes that are going to matter. And perhaps we haven't looked at consolidation of Dalit constituency in Bihar. That's also happening. And that is where BJP has edge over others in Bihar, in Dalit outreach. If you just look at newest studies in Bihar, sociological studies in Bihar, BJP has done excellent work in terms of Dalit outreach. And that's why for BJP, self-proclaimed Hanumanji or Prime Minister is making so much waves across castes and communities. That's something qualitatively different. If you look at Bihar's history, from Bhola Paswan Shastri to Manjhi Ji to Chirag Paswan, there has been qualitative change. You remember Bhola Paswan Ji came from Gandhian background, became a Shastri, and then what I call Manjhi is a defiant populism. He was able to disrupt the ruling establishment during his brief term, and now Chirag is becoming. That's something is quite unusual, unconventional in Bihar, that cannot be reduced to caste alone. That's what my assessment is. प्रोफेसर अश्विनी कुमार, एक बताएं कि जैसे जो माइग्रेशन पे आपने काम किया और जो इस समय बीजेपी या एनडीए एक पूरी ड्राइव कर रही है कि ये जो माइग्रेंट पॉपुलेशन बिहार से बाहर रहता है, उसमें वो छठ के आसपास 1.5 करोड़ लोग वापस बिहार में जाएं और वो कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट को इन्फ्लेट करें, वो बढ़ाएं उस टर्नआउट को. तो आपको लगता है कि जो ये माइग्रेंट ब्लॉक है या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ का जो ब्लॉक है, जिसको कि तेजस्वी ने उस इमेजिनेशन को टैप किया था 2020 में, तेजस्वी वर्चुअली एक तरह से काफी जीत के करीब पहुंच गए थे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और उस ब्लॉक को उन्होंने टारगेट किया था. लेकिन ये दोनों जो ब्लॉक है वो भी अंत में कास्ट पे वोट करेगा या फिर वो अपने जो इशू है अनएम्प्लॉयमेंट क्लास की तरह वो बिहेव करके वो अपने वोटिंग पैटर्न को डिसाइड करेगा? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी अच्छी जानकारी हो सकती है कि माइग्रेशन स्टडीज में, एंड इनफैक्ट आई हैव मेंशन्ड इन माय वन ऑफ द पीसेस फॉर हिंदू, एंड देयर आई लुक्ड एट in terms of how regional parties and national parties look at migrant voters,
जो टर्म हमारे पास है माइग्रेंट वोटर, अभी आप देखिएगा जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस की जो परंपरा रही है या CSDS में भी अब जाकर माइग्रेंट वोटर हर हमारे सर्वे का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता चला जा रहा है। Until quite recently there was nothing called migrant voter। तो अभी आपने जो कहा है बिहार के चुनाव में 2025 में कंपेयर टू 2020 में, वन ऑफ द रीजंस परहैप्स एनालिस्ट मिस्ड आउट और somehow जर्नलिस्ट आल्सो मिस्ड आउट। आपने देखा होगा कि बिहार में 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी 2020 में। अगर आप ये 10-11 कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप आरजेडी को देते तो उनकी सरकार बन जाती। वहां फैसला 1000 से कम वोट का हुआ है। प्रेम मुखिया 12 वोट से जीतते हैं, 12 वोट से प्रेम मुखिया जीतते हैं, और ये 12 वोट उनको पोस्टल वोट से मिले थे। ये हमें दिखाई देता है सरफेस पे। यू स्क्रैच द सर्वे। उनकी जीत के पीछे कोविड में घर लौटे हुए ये जो हमारे मजदूर थे, जिनके बारे में मैंने कहा डिसएनफ्रेंचाइज्ड माइग्रेंट वोटर्स हैं, उनकी बिहार में भूमिका धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर 2020 वो हमारा पहला डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट था, तो 2025 में अगर छठ के समय मुझे जैसे मैंने कहा 11 अगर आप वो देख लें नैरो, और 20% ऐसी सीट्स थी बिहार में जहां पर बहुत ही नैरो मार्जिन था, बिटवीन 1% टू 2% और 2.5% का गैप था। ये करीब तकरीबन 43 सीट्स है और अक्रॉस है, वो नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, ईस्ट बिहार अक्रॉस है। पूर्णिया ले लें, आप मोतिहारी ले लें, आप ईस्ट चंपारण ले लें, ये सारे जो माइग्रेंट, इनफैक्ट गया हैज इमर्ज्ड अ मेजर माइग्रेंट वोटर एरिया। कोविड में 1,15,000 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट हमारे मजदूर लौटे थे गया में। तो 2025 के चुनाव में करीब ये 40-50 कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं देख रहा हूँ करीब से। वहां अगर छठ के टाइम में अगर लेट्स एस्टिमेट कि व्हाट इज दिस ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ बिहारीज आउटसाइड माइग्रेंट वोटर्स कौन है ये, तो देखिए जो डोमिसाइल्ड है उनको हटा दीजिए। एक कहा जाता है कि करीब 2.5 करोड़ बिहारी बाहर रह रहे हैं, वो परमानेंट सिटीजन है बेंगलोर में, डोमिसाइल्ड है, तो वो नहीं आएंगे। जो हम लोग का अपना एस्टिमेट है वो हम उसे कहते हैं टेम्पररी माइग्रेंट्स, सीजनल माइग्रेंट्स, ये सब की संभावना एस्टिमेटेड हमारा जो लगता है वो बेस्ड ऑन माइक्रो स्टडीज 50 से 60 लाख है। अगर हमने रेलवे का डेटा देखा हो या हमने एयरलाइन का डेटा देखा वो छठ के समय में, तो उसके बेसिस में जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम ने जो असेस किया था रेलवे के डेटा से, हमें ये उम्मीद लग रही है कि 50 से 60 लाख लोग बिहार में छठ के टाइम में लौटेंगे। और अगर ये 50 से 60 लाख छठ के टाइम में लौटेंगे, हाउ वुड दे वोट? विल दे वोट अकॉर्डिंग टू कास्ट और दे विल गो बाय देयर ओन नेशनल एक्सपीरियंसेस? यहाँ पर माइग्रेशन लिटरेचर हमें ये बताता है कि जो बाहर के माइग्रेंट वोटर्स आते हैं वो आमतौर पर जो नेशनल पार्टीज होती है, जिससे बीजेपी को लाभ हो रहा है और होगा भी लाभ, जिस तरह से आउटरीच कार्यक्रम वो चला रहे हैं, तो जो नेचुरल प्रेफरेंस होता है कि आपकी पूरी कास्ट आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है। तो डिपेंड होता है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं वहां आपको कैसा कैंडिडेट मिलता है। अगर वो कैंडिडेट आपकी जाति का नहीं भी है तो भी ये माइग्रेंट वोटर वहां वोट दे देंगे। ये हमें पंचायती राज में माइग्रेंट वोटर्स के रोल से पता चला है। जो थोड़ी बहुत हमारे पास स्टडीज हैं, एनेक्डोटल एविडेंस है, उससे हमें पता चला। वी डोंट हैव ए लार्ज सर्वे ऑन माइग्रेंट वोटर्स इन बिहार और एल्सवेयर। So on the basis of these anecdotal evidence, impressionistic evidence, and also some micro studies, my sense that in 2025 migrant voters will make sense, at least to the extent of जो मार्जिन है, जहां जहां छोटी छोटी मार्जिन से जीत होने वाली है, वहां पर माइग्रेंट वोटर्स का रोल बढ़ेगा बिहार में। So एक सवाल है on the question of how do you think the seat sharing talks among the India bloc parties will play out, because वो अभी शुरू ही हुआ है recently they at the meeting, and last time the Congress party's performance, the Congress party post strike rate really pulled down the performance of the overall alliance, and the CPI-ML on the other hand is citing its performance and saying we need more seats this time, we deserve more seats, and so how do you think that is going to play out? Is Congress going to lose out? I think as I said at the outset, much will depend on Bihar on three things. As I said, hyperlocal, second, micro social engineering, and finally how you allocate seats to each other.
I mean, this is what is called coalition arrangement in terms of sharing the power, before elections happen. From that point of view, I guess, it looks like to me, I'm not sure, I'm not privy to the discussions going on, but based on the insight and intuition, it seems that Congress will not get 70 seats this time. I mean, like, if they do it, it's almost like political harakiri. And although, on the other hand, although there is something very paradoxical about Congress in Bihar, although it's in last 5 years, there seems to be some vibrancy on the ground, not in terms of organizational strength. There seems to be what we call layover effect of 2024, that you have become principal opposition and you have led this, caste census, etc., on so many things, that really gives Congress a certain, foothold, certain vibrancy. So they will not exactly get, 70, but at least 50. And if they get 50 and 40, their strike rate this time will be better than the last year. That seems, it may go wrong, but it seems on the ground there is some kind of energy, and they have also installed a Dalit leader, Congress, Yes. if you recently. That's going to make some sense there in Bihar. So, but the left party, I don't think, my sense is this time left party will not do as good as they did in 2020 elections, I think there is more of exuberance rather than the reality, Left benefited largely, again, I'm going to go back to the migrant literature. I work with them. So most of the migrants actually are from the bottom, from the lower strata. And many of them mobilized by, Male, particularly. Male has a long history since 1967. And also because of, lack of, if you recall, Chirag Paswan, fielded 143 candidates in 143 constituencies. That really dented, in Ara, Buxar, and other areas where left won, largely because of, lack of consensus across candidates amongst themselves. So this time, I don't think there is much, resurgence for left party as such on the ground. Okay. So they need to recalibrate and realign their seat arrangements in a way that they can pose effective challenge to already, I mean, like, let me say that, NDA seems, quite solid at this juncture. Right. Quite solid. I mean, like, so 2025 won't be repeated, but the margin, the extent will be known only after a couple of months down the line. प्रोफेसर कुमार, एक लास्ट कमेंट उससे पहले हम वाइंड अप करें कि आपको लगता है कि फिर तेजस्वी यादव और बीजेपी को अभी, और तेजस्वी यादव को अगले 5 साल और बीजेपी को अगले 2-3 साल नीतीश कुमार के संसद होने का इंतजार करना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए? आई थिंक नीतीश कुमार जी के साथ अभी मुझे लगता है बीजेपी रहेगी, और जिस तरह से मुझे बिहार का नजर आ रहा है, ग्राउंड पे नजर आ रहा है, और ऐसे भी अगर आप देख ले, मैं बार बार लौट रहा हूँ, 2005 से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, बदलते हुए बिहार को और जो नया बिहार है, उसकी कहानी शुरू हो जाती है लालू जी से, हम जिसको मंडल कहते हैं। उस हिसाब से नीतीश कुमार जी के साथ और बीजेपी का जब जब दोनों का साथ रहा है, गठबंधन रहा है, there seems to be and that has defied our prediction and projections about the outcomes, आप ये देख ले, अगर आप ट्रेंड एनालिसिस कर ले, आउटकम्स का देख ले, तो ये व्यवस्था नहीं है बीजेपी के साथ, और ये कोई समझौता भी नहीं है। ये बिहार की जमीन ही ऐसी है जहां जाने के बाद बीजेपी वो बीजेपी नहीं रहती है जो महाराष्ट्र की बीजेपी होती है। ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं है। मैं तो कहूंगा कि बिहार की बीजेपी दूसरे, जैसे हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपस में बातें करते हैं कि अक्सर हमको सोचते हैं कि क्या एक ही बीजेपी है, मुझे लगता है नहीं, देयर आर मेनी मोर बीजेपीज। सो बिहार की बीजेपी के संवाद और बिहार के बीजेपी की जो काम करने का तरीका यूपी से बिल्कुल अलग है। और ये जो जमीन है, बिहार की जो जमीन बनी है, जो बुद्ध की जमीन है, इस बुद्ध की जमीन पर आने पे आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करती है, रिकैलिब्रेट करती है और सोच समझ के चल रही है। यही बताता है कि बीजेपी का आप देख लीजिए वोट शेयर, बीजेपी का बेस्ट वोट शेयर रहा है 24% रहा है, जब बीजेपी
महागठबंधन के खिलाफ लड़ी थी और बीजेपी अभी भी 17-18% के आसपास में है और नीतीश जी 14-15% के आसपास में है। तो इसका मतलब ये दिखाई देता है कि दोनों मिलकर काफी इफेक्टिव रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है बिहार में for many years to come. And finally, just to conclude, I mean, like, it seems like, let's not speculate who after Nitish. Let's not speculate. Whenever we have speculated, Nitish ji has come back with much more, vigor, and he has surprised many. But who after Nitish? I guess BJP is already well embedded into the landscape. That's going to be a surprise for many political analysts in the country for times to come. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कुमार हमसे जुड़ने के लिए, और सौरभ आपका भी धन्यवाद। जिस तरह से प्रोफेसर कुमार ने कहा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जो पिछले इलेक्शन का एक तरह से स्लोगन था, नीतीश कुमार अभी भी वहां पे बने हुए हैं, बने रहेंगे। अगर प्रोफेसर कुमार के प्रेडिक्शन को हम वैल्यू करें, हालांकि प्रशांत किशोर का कहना है, जो एक अलग प्रेडिक्शन हर एक चुनाव का देते रहे थे, हालांकि लोकसभा में वो काफी मिजरेबली फेल हुए, लेकिन उनका ये कहना है कि ये नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव होगा। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है या नीतीश कुमार पहले की तरह बाउंस बैक करके फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।